Hello dear students, here is the second lecture of equilibrium. The numerical is given, two sphere P and Q of weight 50 Newton each and radius of 100 mm. Okay, so these are the two spheres P and Q which are identical in weight and size. In horizontal channel of width 360 mm. Okay, so the width of this channel is given, which is 360 mm. Determine the reaction at the point of contact A, B and C. Okay, so we have to find out RA, RB and RC. Okay, so P and Q are two identical sphere. So first of all, we will draw the ABD of both the sphere P and Q. Here first we will draw the ABD of P sphere. Okay, so this is P. The name of this sphere is P. Okay, here is one contact. See, there is contact between this wall of channel and this surface of sphere. Okay, so ये जो reaction है वो कैसा रहेगा? ये reaction, this reaction will be like this. Okay, अगर ये नहीं रहता, ये वॉल नहीं रहती, तो स्फीयर क्या हो जाता था? इधर चला जाता था. मतलब क्या, यहाँ से उसको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है मूवमेंट से, इसलिए ये साइड से रेस्ट्रिक्शन हो रहा है ना. सो ये रहेगा आर ए, रिएक्शन एट ए. अगर ये नहीं रहता तो स्फीयर नीचे आ जाता. मतलब क्या, यहाँ पे एक रिएक्शन रहेगी आर बी, और ये कांटेक्ट जो है दोनों स्फीयर का एक दूसरे के साथ, वहाँ पे एक रिएक्शन रहेगी. उसको हम बोलेंगे रिएक्शन एट contact between two spheres. Okay, so that reaction will be, so we will find out that first. Okay, so we will join the radius of both sphere. The radius is 100 mm, so this will be 200 mm. Okay, okay, this is 100 and this is 100, so this will be 360 minus 200, 160. Okay, so we will find out this angle. Let's say that angle is theta. So theta is equal to, ये रहेगा थीटा. इसमें एडजेसेंट आ रहा है और हाइपोटेनस आ रहा है. तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस किस में रहता है? कॉस में रहता है. सो कॉस इनवर्स ऑफ एडजेसेंट इज 160, हाइपोटेनस इज 200. सो विल फाइंड थीटा. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 160 divided by 200. It is 36.86. So theta is 36.86 degree. So ये जो रिएक्शन रहेगी ये कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी. और ये रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल रहेगा 360. देखिए कैसे, ये स्फीयर का रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यानी क्या? ये एंगल. सो दिस एंड दिस आर अल्टरनेट एंगल, बोथ विल बी सेम. सो ये जो है ये रहेगा थीटा. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते. देखो ये आर ए, ठीक है, इधर आ जाएगा, इसका नाम है आर सी. यह आ जाएगा आर सी. Angle of RC with horizontal is 36.86 and this will be RB. Okay, so this is the ABD of sphere B. ठीक है, ये ABD हो गया sphere P का, sphere P. ठीक है, so we will find out the angle between now two reactions. So angle between these two reaction is 90 degree. Okay, this angle will be, this angle 90 plus 36.86, 126.86, and this will be, what will be this angle? It is 180 minus 36.86. It is 143.14. 143.14.
Okay, so here are the reactions and this is angle. Now we will draw the FBD of Q sphere. Okay, अभी क्यू स्फीयर का जो आरसी है, रिएक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट, वो ये पी पे ऐसे लगा है, तो पी का कॉन्टैक्ट रिएक्शन क्यू पे कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा RC, and this angle will be 36.86. okay, now sorry, हम उसको RC यहाँ पे RC आएगा, तो हम थोड़ा सा नोटेशन चेंज करेंगे, ये PQ कहेंगे, ये भी PQ कहेंगे. ठीक है, अभी RC का रिएक्शन ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा RC. हाँ, और एक रह गया ये दोनों का वेट. ठीक है, वेट जो दिया है 50 न्यूटन दिया है, 50 न्यूटन, इसका भी वेट आएगा इसका वेट आएगा 50 न्यूटन. ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल 126.86, दिस एंगल इज 143.14 and this angle is 90. Okay, now we will solve the problem. Here are the 3 reactions and here are the 4 reactions. So here we can apply Lami's theorem. Okay, Lami's theorem will be like this: 50 upon sine 143.14 is equal to RPQ upon sine 90 is equal to RC upon sine 126.86. okay, find this RC and RPQ. so we'll find here RC, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50 इंटू साइन 126.86 डिवाइडेड बाय साइन 143.14, 50 इंटू साइन 126.86 डिवाइड बाय साइन 143.14. so RC, the value of RC will be 66.69 and we'll find RPQ. is 50 divided by sin 143.14, sin 91 रहता है. ठीक है, तो ये आएगा 83.35 न्यूटन. ठीक है, अभी यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा फोर्सेस है, तो आप यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो. यही आंसर आएगा. यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने हैं. मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देती हूँ. नाउ समेशन फॉर स्फीयर P, ये P है, ये वो Q है. समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fx इज इक्वल टू 0. तो fx में क्या क्या आएगा, RA आएगा और इसका x कंपोनेंट आएगा, RA माइनस RPQ cos 36.86 इज इक्वल टू 0. इधर जा रहा है, देखो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको. ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, लेकिन ये इंक्लाइन है, तो ये जो इंक्लाइन है इसको रिजॉल्व करेंगे फर्स्ट. सो इसका जो रिजॉल्व करने के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो RPQ cos 36.86 आएगा. ठीक है, RA की वैल्यू हमको पता नहीं, सो RA इज इक्वल टू RPQ की वैल्यू है 83.35 cos 36.86. सो यहाँ पे RA आपको मिल जाएगा, RA इज इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं, RA इज इक्वल टू 83.35 इंटू cos 36.86, वो आता है 66.68 न्यूटन.
ठीक है। अभी समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लेंगे हम। समेशन एफ वाई, ये सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसमें आएगा आर बी माइनस 50 माइनस आर पी क्यू साइन 36.86 इज इक्वल टू 0। सो आर बी इज इक्वल टू 50 प्लस आर पी की वैल्यू है 83.35 साइन 36.86। सो आर बी इज इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बी, इट इज 83.35 साइन 36.86 डिवाइड बाय प्लस 50, आंसर आता है 100, 99.99 यानी 100 न्यूटन, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स, ठीक है। आर सी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू और आर ए की वैल्यू भी हमने फाइंड की है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एफ बी डी ड्रॉ करते आना चाहिए, कहाँ पे कौन से रिएक्शन, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वो आपको फाइंड करते आना चाहिए, ठीक है। एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद बस आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। विल टेक अनदर प्रॉब्लम। हियर इज अनदर प्रॉब्लम। 200 Newton sphere is kept in a trough. Find the reaction at A and B. Okay, here is A and here is B. So we'll draw the FBD of this sphere. First of all, इसमें आएगा सबसे पहले weight 200 Newton and the reaction will be like this. This is RB. Now we have to find out horizontal angle of this reaction B. Okay, इसका horizontal के साथ हमको angle find करना है, ठीक है। देखो कैसे angle आएगा, ठीक है। ये perpendicular हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 5 है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यानी क्या, ये एंगल, ठीक है। सो ये टोटल जो है वो टोटल कितना है 45, ये 5 है यानी ये भी क्या आएगा 5। सो व्हाट विल बी दिस एंगल 45 माइनस 5, देखिए ऐसा है वो, ठीक है। हाँ, ये जो एंगल है ये पूरा 45 है, ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 है, सॉरी हाँ, ये 5 है तो ये भी 5 आ जाएगा, मतलब क्या 45। तो आपको ये एंगल चाहिए, वी नीड दिस एंगल। सो 45 माइनस ये 5 कितना आएगा, वो 40 आएगा। सो आर बी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आएगा 40, ठीक है। अभी आर ए का एंगल देखिए, आर ए का एंगल क्या आएगा, दिस इज 90 डिग्री, ये 45 है, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 आएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा है, मतलब टोटल क्या 45 प्लस 5 50। सो इसका आर ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आएगा 50 और आर बी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आएगा आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आएगा 40, ठीक है। समझ में आया। This is 200. Now we have to find out the angle between these two forces. ठीक है, ये 90 है तो ये टोटल एंगल आएगा, टोटल एंगल विल बी 90 प्लस 50 140 and this angle will be 90 plus 40 130.
and this will be 90. ये एंगल आएगा 90. ठीक है, मैं अलग इससे दिखाती हूँ. टोटल एंगल जो है, this angle will be 140, this angle will be 130 and this angle will be 90. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. बाय लैमिस थ्योरम 200 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू आर ए अपॉन साइन 130 इज इक्वल टू आर बी अपॉन साइन 140. फाइंड आर ए and RB. Calculate. RA will be 200. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. 200 इंटू साइन 130 डिवाइड बाय साइन 90. साइन 91 आया है. ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 153.2 डिवाइडेड बाय 1 इज 153.2. ठीक है, सिमिलरली विल फाइंड RB. RB इज इक्वल टू 200 इंटू साइन 140 डिवाइड बाय साइन 90. नहीं किया तो भी चलेगा. इट इज़ 128.55 न्यूटन. दिस प्रॉब्लम वॉज आस्क्ड इन December 19 को पूछा था 8 मार्क्स के लिए. बहुत छोटा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा था. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, बहुत इजी है. बस एंगल की तरफ ध्यान देना, फोर्स की तरफ ध्यान देना, वेट जो दिया है कौन से डायरेक्शन में, कितने एंगल पे फोर्स एक्ट. अगर एंगल गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, एंगल केयरफुली फाइंड कीजिए, आपको आंसर भी सही मिल जाएगा. ठीक है, सो विल टेक वन मोर प्रॉब्लम. हियर इज अनदर प्रॉब्लम. A 20 kg homogeneous smooth sphere rest on two inclinations 75 degree and 30 degree. Calculate the contact forces at point A and B. So this is point A and this is point B. Okay, हम सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. yes. सो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना आएगा 60. ये 75 है, ये 90, तो ये कितना आएगा 15. ठीक है, so this is 20 kg homosphere. 20 into 9.81 which is equal to 20 into 9.81 196.2 Newton. This is RA and this is RB. Okay, सो RB का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री और RA का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 15. सो द टोटल एंगल विल बी 90 plus 15, it is 105. This is 150 and this will be 105. ठीक है, अभी हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो व्हाट विल बी लैमिस थ्योरम. 196.2 डिवाइड बाय साइन 105 इक्वल टू RA अपॉन साइन 150 इक्वल टू RB अपॉन साइन 105. ओके, सो RA इज इक्वल टू, फाइंड RA, 196.2 into sine 150
विच इज़ 98, कुछ तो गलत हुआ है, RA अपॉन 150 RB अपॉन 105 196.2 into sine 150 divided by sine 105. Answer is 101.56 Newton. So RB is equal to 196.2 into sine 105 divided by sine 105. It is 196.2 न्यूटन. दिस इज आंसर. ठीक है, आज के लिए इतना ही. प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स की. सॉल्व करके देखिए. ठीक है, होमवर्क के लिए आप सॉल्व करके देख सकते हो. RC हिबलर, बियर एंड जॉनसन में कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल एक्सरसाइज दिया हुआ है. प्लीज़ आप वो बुक रेफर कीजिए. मेरियम एंड क्रेग में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है, पेपर जो आएगा वो इसी में से आएगा. ठीक है, इन सेम का पेपर बहुत इजी था. इसका मतलब ये नहीं कि एंड सेम का वैसे ही इजी आएगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. ओके, डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देन ओनली एंड सेम एग्जाम विल बी क्लियर्ड. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.